So the next question is the total number of factors of a prime number is 1, 0, 2 or 3. So let us see an example. फॉर एग्जाम्पल 5 एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 5 कैन फैक्टराइज एज 5 इंटू 1। इसके कितने फैक्टर आए, 2 फैक्टर। सिमिलरली 3 एक प्राइम फैक्टर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1। कोई और देखते हैं, से 23 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 23 इंटू 1। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सबके कितने फैक्टर्स बना सकते हैं हम, 2 फैक्टर्स। सो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर आर 2। ओके, then the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196। इसमें हमने करना क्या, 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो उसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनकी पावर्स का सम करना है। तो 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो 298, 249 is 98, then 7 पे जाएगा, 7 7 is 49 and 7 1 is 7। So here we see 196 is equal to 2 square multiplied by 7 square. But we want to find out the sum of exponents. Exponents means powers of these prime factors. So therefore sum of exponents will be equal to 2 की पावर कितनी है, 2 and 7 की पावर कितनी है, 2। So the sum of exponents is 4. So the correct option is B. Then the exponent of 2 in the prime factorization of 144। So हम पहले 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। So 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 72 is 144, 36 2 is 72, 18 2 is 36, 9 2 is 18। now 3 पे जाएगा, 3 3 is 9 and last is 3 1 is 3। तो यहाँ पे 144 के फैक्टर बन गए। 144 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर 4 into 3 square। But in this question we are interested to find out the exponent of 2। So 2 का exponent देखना है। So 2 का exponent कितना है यहाँ पे, 4। So the correct option is B, 4। Then the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65n minus 117। Then the value of n, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65 एंड 117। तो ये जाएगा 5 पे, 13 5 ज़ा 65, देन 13 पे, 13 1 ज़ा 13। तो 65 के फैक्टर बन गए 5 इंटू 13। सिमिलरली 117 के फैक्टर, 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। देन अगेन 3, 13 3 ज़ा 39, देन 13 1 ज़ा 13। सो 117 की फैक्टराइजेशन बन गई 3 square into 13। Now the HCF of 65 and 117 will be equal to, common factor कौन सा है दोनों में, 13। So HCF is 13। Now it is given that the HCF is expressed in the form of 65n minus 17। So HCF is expressed 65n minus 117, it is equal to 13। So from here we can find out the value of n. So 65n will be equal to 13 plus 117, which is equal to 130।
So 65n is equal to 130. So we want to find out the value of n. So n will be equal to 130 upon 65. So 65 2 is the 130. So answer is 2. So the value of n is 2, option B. Okay. Then similar question, but this is LCM of 12 and 42 is expressed as 10m plus 4. Then find the value of m. तो अब हम 12 और 42 का एलसीएम निकालेंगे. 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 the 12, 2 3 the 6 and 3 1 the 3. So 12 will be equal to 2 square into 3. Similarly 42. So 42 can be expressed as 2 21 the 42. 3 पे जाएगा, 3 7 the 21, then 7 1 the 7. So 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 42 is equal to 2 into 3 into 7. Now we want to find out LCM. LCM of 42 and 1 LCM of 12 and 42 will be equal to. तो LCM में हम क्या करेंगे, सारे ही प्राइम फैक्टर लेंगे बट विद द ग्रेटेस्ट पावर. जो सारे प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो है 2 3 एंड 7. बट 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 7 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है. So it will be equal to 84. Now it is given that the LCM is expressed in the form of 10m plus 4. So this LCM 10m plus 4 will be equal to 84. So from here we can find out the value of m. So 10m will be equal to 84 minus 4 is equal to 80. So this is 10m. So 10m आ गया हमारे पास 80. So m will be equal to 80 upon 10 and it is equal to 8. So the option again it is B. Okay. Then the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 5. So जो least number 1 to 5 divisible होएगा वो होगा LCM of 1 to 5. तो LCM निकालने के लिए हम 1 के फैक्टर 1 ही बनेंगे, 2 के फैक्टर 2, 3 के फैक्टर भी 3 बनेंगे, 4 के अगर फैक्टर बनाए तो 4 के फैक्टर बनेंगे 2 का स्क्वायर एंड 5 के फैक्टर इज 5. सो हमने इनका निकालना है LCM. तो LCM ऑफ 1 2 3 4 5 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5. सो द आंसर इज 60. तो जो लीस्ट नंबर डिविजिबल होएगा 1 to 5 that will be 60. Now here it is the similar question, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. तो यहाँ पे भी हम 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर हैं उनका LCM फाइंड आउट करेंगे. तो 1 is expressed as 1, 2 is expressed as 2, 3 can be expressed as 3, 4 के फैक्टर 2 स्क्वायर, 5 can be expressed as 5, 6 can be expressed as 2 into 3, 7 can be expressed as 7, 8 के फैक्टर बनेंगे 2 का क्यूब. Similarly 9 can be expressed as 3 square and last 10 can be expressed as 2 into 5. Now we want to find out the LCM from 1 to 10. इन नंबर का हमने LCM निकालना है. So their LCM will be equal to product of prime factors with greatest power. तो जो सारे प्राइम फैक्टर है 2 की ग्रेटेस्ट पावर है इट इज 3. सो 2 क्यूब. देन अगला प्राइम फैक्टर है 3 की ग्रेटेस्ट पावर आ रही है 3 का स्क्वायर. इसके बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है एंड द नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 7 की भी ग्रेटेस्ट पावर 1 है. तो 7 5
3 square. 2 का क्यूब इट इज 8 into 9 into 5 into 7. So let us calculate. So after calculation it is equal to 2520. तो ये जो नंबर 2520 होगा that will be divisible by all the numbers from 1 to 10. So the correct option is. So the next is the largest number that divides 70 and 125 which leaves the remainder 5 and 8 is. So हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है, लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जिसको 70 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। अगर हम उसको 125 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर कितना आएगा 8। तो देखिए अगर हमने 70 से हम उस नंबर को कर रहे हैं डिवाइड, उस 70 को उस नंबर से कर रहे हैं डिवाइड से, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। और 125 से 125 को हम उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना दे रहा है वो 8। तो हमने वो नंबर ढूंढना है, ये n नंबर ढूंढना है हमने कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 70 में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे। 70 से जब डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो 70 minus 5 will be equal to 65. Now this 65 will be completely divisible by the required number. Okay. Similarly 125 से अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं नंबर को तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। सो 125 में से 8 को माइनस किया, so we get 117. Now this 117 will be completely divisible by the required number n. And to find such number we will find out the HCF of 65 and 117. तो 65 के अगर हम फैक्टर बनाएं 5 पे गया सबसे पहले 7 13 5 the 65, then 13 was the 13. ओके तो 65 के प्राइम फैक्टर बन गए 5 into 13. सिमिलरली 117 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 117 तब सबसे पहले 3 पे गया 339, देन अगेन 3 पे 13 3 is 39 and last 13 was the 13. So 117 के प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास 3 square into 3. So the largest number, the required largest number will be the HCF of 65 and 117. तो दोनों में HCF में हमने फाइंड करना है, HCF करिए, we will find out the product of smallest power of each prime factor. So तो common prime factor दोनों में आ रहा है वो है 13. So HCF कितना आ गया 13. It means of the largest number that divides 70 and 125 which leaves the remainder 5 and 8 is 13. Okay. Now the similar question, the largest number which divides 615 and 963 leaving remainder 6. तो 615 से अगर हम 615 को उस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं रिक्वायर्ड नंबर n से, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 6। एंड अगर हम 963 से डिवाइड कर रहे हैं 963 को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगेन इट इन दिस केस इज ऑल्सो 6. तो टू फाइंड दैट नंबर, तो 615 में से हम 6 को करेंगे माइनस, सो इट विल बी इक्वल टू 609. Now this 609 will be completely divisible by required number. Similarly 963 में से हम 6 को करेंगे माइनस, so it will be equal to 957 and 957 जो होगा वो पूरी तरह divisible हो जाएगा required number से. And to find such number again we will find the HCF of 609 and 957. So 609 की prime factorization, sorry, it is 2 3 6.
एंड उसके बाद आएगा 7 पे 29 7 था 203 एंड लास्ट 29 वन था 29। तो 609 के फैक्टर बन गए हमारे पास 3 इंटू 7 इंटू 29। ओके, सिमिलरली 957 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 957 सबसे पहले जाएगा 3 पे, तो 319, उसके बाद ये नंबर जाएगा 11, so 11 29 का 319 and last is 29 1 का 29। so 957 के फैक्टर बन गए 3 into 11 into 29। so the largest number, the required largest number will be HCF of 609 and 957, so which will be equal to, तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं? एक तो है 3 की लीस्ट पावर दोनों में ही 1 है, तो दूसरा प्राइम फैक्टर कॉमन है 29 की पावर कितनी है 1, so 3 into 29 will be equal to 87। so the required largest number is 87। आप चेक भी कर सकते हो, देखते हैं। अगर मैं 615 को, ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए, 615 को हम 87 से करेंगे, सॉरी लेट मी रेज दिस, 615 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 87 से। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास 7 पे जाएगा, सो टू बी इक्वल टू 609, तो अपॉन सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर इज 6। ठीक है, तो यही हमें गिवन तक 615 को डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा 6। एंड सेकेंड नंबर 963 को भी चेक कर लेते हैं। 963 को अगर हम 87 से करेंगे डिवाइड, तब देख लेते रिमाइंडर कितना आएगा। तो 87 वन बाई 87, 9 and 83 again 81 7 1 by 87, so in this case again remainder is 6, so it means our answer is correct, it is 87। एक और क्वेश्चन ऐसा ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 and 2623 लीव रिमाइंडर 9 and 5। सो सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें हम 2011 में से 2011 को डिवाइड कर 2011 को अगर हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर से, हमें रिमाइंडर कितना दे रहा है वो 9, और 2623 को अगर हम उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर कितना दे रहा है वो 5। ओके, सो 2011 में से हम 9 माइनस कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 2002, एंड 2623 में से 5 रिमाइंडर माइनस किया, सो इट विल बी 2618। सो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो इन दोनों का 2002 और 2618 का HCF होगा। सो 2002 पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। टू पे 1001, देन अब जाएगा ये 7 पे, ठीक है, देन उसके बाद 11 13 इज द 143 एंड 13 वन द 13। तो 2002 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सिमिलरली 2618 के भी प्राइम फैक्टर बना लेंगे। थर्टीन टू ज़ा 2609, देन ये नंबर डिवाइड होएगा अगेन 7 पे, इट इज 187, 11 17 is 187 and last is 17 was the 17,
तो 2618 की प्राइम फैक्टरेशन आ गई, बन गई हमारे पास 2 इंटू 7 into 11 into 17. So the required largest number will be HCF of 2002 and 2618. So HCF के लिए प्राइम फैक्टर कॉमन कौन कौन से हैं? एक तो है 2, second one is 7 and another is 11. So it is 2 into 77 which is equal to 154. So the required largest number will be equal to 154. Okay.